जहां डेटा क्लियर हो वहां डिसीजन पावरफुल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा मोरे एंड आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे पावर बीआई स्लाइसर्स को इंस्टेंटली लार्ज साइज डेटा में से क्विक इंसाइट्स लेने के लिए यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टुडेज पावर बीआई वीडियो, द पावर ऑफ स्लाइसर्स इन पावर बीआई। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पावर बीआई डेस्कटॉप को स्टार्ट करना है एंड आपका डेटा सेट जो है वो अपलोडेड होना चाहिए। सो ये हम अभी आए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। मैंने ऑलरेडी मेरा डेटा सेट जो है ये अपलोड कर दिया है। मेरे डेटा सेट का नाम है सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट एंड इसको अगर आपके पास ये डेटा सेट नहीं है, इसको आपको अपलोड करके फिर आपको स्लाइसर्स के ऊपर काम करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैंने ये सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट के लिए लिंक दे दिया है। सो फ्रॉम माय ब्लॉग यू कैन डाउनलोड द सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट। सो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि पावर ऑफ द स्लाइसर, सो स्लाइसर का यूज किया जाता है टू फिल्टर द डेटा और टू गेट द क्विक इंसाइट्स फ्रॉम योर डेटा। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं कॉलम चार्ट थ्रू मेरा जो कैटेगरी वाला डेटा है एंड सब कैटेगरी वाला डेटा है, इसको मैं सबसे पहले प्रेजेंट कर रही हूँ। सो मैं अभी ले रही हूँ कॉलम चार्ट को। कॉलम चार्ट का यूज करके मैं सबसे पहले चेक कर रही हूँ what is the profit, sorry, sales for all the category and what is the profit for all the category। जैसे कि मैंने बताया है आपको, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो मेरे मेरे डेटा सेट में कैटेगरी वाला कॉलम जो है वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो उसको मैं ले रही हूँ ऑन एक्स एक्सिस ऑफ माय कॉलम चार्ट and then I want to present the sales. So on y-axis, I am taking the sales. So in this way, the column chart is presented here. I have presented my data through the column chart, and this is about to find out what is the total sale for all the categories, which category has generated the maximum sale and which category has generated the minimum sale. Same way, same way, I can present the profit for the category. So again, I am taking one another column chart and I want to present the profit, whatever the profit that has been generated for all the category. So again, I have selected the column chart here and I'm on my column chart, I'm taking the category variable on my x-axis and I want to present now the profit. So for that purpose, what I will take, I will select the profit variable on my y-axis. And in this way, I have presented my data with the help of the column chart. And in this column chart, you can see how the profit is generated over all the categories. So you can see technology has generated maximum highest profit as compared to the office supplies category and as compared to the furniture category. So ये मैंने बताया अभी किसके लिए, मैंने कैटेगरी वेरिएबल के लिए सेल्स प्रेजेंट किया है एंड प्रॉफिट प्रेजेंट किया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेम I am selecting again the column chart and in this column chart I want to present now total sale for all the categories. So I have selected the column chart and I want to present the data for all subcategory and I want to present the sale. So what I will select, मैं यहाँ पे select कर सकती हूँ सब category वाला variable on my x axis and I am selecting the sales variable on my y axis. So you can see here I have presented, मैंने क्या प्रेजेंट किया है, सो सब कैटेगरी वाइज आई हैव प्रेजेंटेड द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ऑल माय सब कैटेगरीज फ्रॉम माय सब कैटेगरी वेरिएबल। सो जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स को प्रेजेंट कर दिया है, उसी तरह से वन अनदर कॉलम चार्ट आई विल सिलेक्ट and in that column chart what I want to present, I want to present now for all the subcategories what is the total profit. So again,
for this column chart, I am selecting the subcategory variable on my x-axis and I want to present now profit for all my subcategories. So I am taking here the profit. So you can see the graph is generated to present what I have presented. I have presented the profit for all my subcategory variable. So in this way, I have presented the sales and profit for category variable, the sales and profit for subcategory variable. तो ये मेरे कॉलम चार्ट थ्रू मैंने सेल्स एंड प्रॉफिट प्रेजेंट कर लिया है फॉर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वेरिएबल। अभी मैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वेरिएबल पे मैं जो सेल्स एंड प्रॉफिट प्रेजेंट कर लिया है एंड आई विल गेट इमीडिएट or quick insights which variable, which category or which subcategory has generated the maximum or highest sales and highest profit। but इसके साथ मेरे डेटा सेट में और भी कुछ वेरिएबल है, जैसे कि ये रीजन वाला वेरिएबल है, जैसे कि ये सेगमेंट वाला वेरिएबल है, जैसे कि स्टेट वाला वेरिएबल है, जैसे कि सिटी वाला वेरिएबल है, जैसे कि शिप मोड वाला वेरिएबल है। सो नाउ आई वांट टू चेक how the sales and profit for category as well as subcategory variables is going to change with respect to। अगर मुझे immediately चाहिए या quickly मुझे चाहिए कि what is the total sales and profit for all the region or a selected region, तो ऐसे क्विकली अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है तो वो क्विक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो स्लाइसर। सो बेसिक इंफॉर्मेशन आप पहले सबसे पहले तो किसी भी एक विजुअल ऑप्शन का या ग्राफ का यूज करके ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर क्विक इंफॉर्मेशन फॉर रिमेनिंग वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइसर्स का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर ले लिया, उस स्लाइसर में अभी मैं चेक करना चाहती हूँ रीजन वाइज व्हाट इज द टोटल सेल एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द कैटेगरी वेरिएबल एज वेल एज सब कैटेगरी वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ रीजन वाला वेरिएबल। सो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, स्लाइसर को सिलेक्ट कर लिया। स्लाइसर को लेने के बाद अभी उसमें मैं एक डेटा डाल रही हूँ, वो डेटा कौन सा है, रीजन वाला डेटा। सो जैसे ही मैंने रीजन को सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर में ऑल द रीजन्स यू कैन सी हियर, सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन एंड वेस्ट रीजन। नाउ जैसे मैंने बोला था आपको कि क्विकली आपको चाहिए total sale and total profit for all the categories as well as total sale and total profit for all the subcategories with respect to the region। तो रीजन के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो ये रीजन मैंने स्लाइसर का यूज करके सिलेक्ट कर दिया है एंड आप चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग और सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रीजन। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे सेंट्रल रीजन। सो सेंट्रल रीजन को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी the values of the sales as well as profit for the category variable as well as subcategory variable is changed। So it has shown, प्रीवियसली क्या कर दिया था उसने, ओवरऑल सेल एंड प्रॉफिट बताया था। हमारे डेटा सेट में जितने भी रोज है फॉर ऑल द रोज इट हैज शोन द ओवरऑल सेल्स फॉर द कैटेगरी वेरिएबल, ओवरऑल सेल्स फॉर द सॉरी प्रॉफिट फॉर द कैटेगरी वेरिएबल, ओवरऑल सेल्स फॉर द सब कैटेगरी वेरिएबल एंड ओवरऑल सेल्स फॉर दी प्रॉफिट फॉर दी सब कैटेगरी वेरिएबल। इसी तरह से उसने क्या कर दिया, हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके दी। लेकिन अब अभी हमें चाहिए कि ओवरऑल नहीं देखना है, अभी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रीजन मुझे चेक करना है। जैसे कि आपके बॉस ने बताया कि भाई मुझे बताओ कि पर्टिकुलर रीजन में क्या सेल हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है फॉर ऑल द कैटेगरीज, फॉर ऑल द सब कैटेगरीज। उसके लिए आप क्या है, यू आर एबल टू प्रेजेंट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ द स्लाइसर्स। सो दिस इज द पावर ऑफ स्लाइसर। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले लिया और इसमें मेरे अभी सब रीजन्स है। रीजन के लिए मैं अभी चेक कर सकती हूँ, सेंट्रल रीजन के लिए टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट क्या है फॉर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ईस्ट रीजन के लिए
टोटल सेल एंड प्रॉफिट क्या है, साउथ रीजन के लिए टोटल सेल एंड प्रॉफिट क्या है, वेस्ट रीजन के लिए टोटल सेल एंड प्रॉफिट क्या है। सो ये इमीडिएटली आप क्या कर सकती हो, क्विक इंफॉर्मेशन फिल्टर कर सकते हो ओनली फॉर द सिलेक्टेड रीजन। सो दिस इज द पावर ऑफ स्लाइसर। उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रीजन के लिए चेक किया, कौन से रीजन में हाईएस्ट सेल जनरेट हो गया है, कौन से रीजन में कितना सेल जनरेट हो गया, कितना प्रॉफिट जनरेट हो गया है, ये हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया। उसी तरह से आप अभी क्या कर सकते हो, ये इसको पहले आपने ये फिल्टर लगाया है, वो फिल्टर को आपको हटाना पड़ेगा। सो मैंने फिल्टर को क्लियर कर दिया। अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वन अनदर फिल्टर। उस फिल्टर में रिमेनिंग वेरिएबल को मैं डाल रही हूँ। वो वेरिएबल कौन सा है, रीजन वाइज तो मैंने चेक कर लिया। अभी आपके बॉस ने बताया है भाई मुझे बताओ कि सेगमेंट में, कौन से सेगमेंट में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हो गया है, फॉर ऑल दी कैटेगरीज, फॉर ऑल दी सब कैटेगरीज। इसमें अभी आप इमीडिएटली बॉस को, अपने बॉस को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो बाय टेकिंग द स्लाइसर एंड यू कैन सिलेक्ट इन द स्लाइसर द सेगमेंट वेरिएबल। सो मैंने यहाँ पे अभी सेगमेंट वेरिएबल को ले लिया। जैसे ही आप सेगमेंट वेरिएबल को सिलेक्ट कर दोगे अपने स्लाइसर में, वो इमीडिएटली स्लाइसर्स की कैटेगरीज बताएगा। स्लाइसर में कौन सा डेटा है, कंज्यूमर वाला डेटा है। सेगमेंट में हमारा सेगमेंट वेरिएबल स्लाइसर के लिए प्रोवाइड किया है, तो कौन से कितने सेगमेंट है, यहाँ पे तीन सेगमेंट है। कंज्यूमर सेगमेंट है, कॉर्पोरेट सेगमेंट है एंड होम ऑफिस है। तो आप क्या कर सकते हो, ये कंज्यूमर सेगमेंट का टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट कितना हो गया है ये चेक कर सकते हैं। तो सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट पे क्लिक करो तो इमीडिएटली वो यहाँ पे जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है वो चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी कंज्यूमर सेगमेंट। अभी इस कंज्यूमर सेगमेंट के साथ ही मुझे चाहिए कि भाई सेंट्रल रीजन में या ईस्ट रीजन में, साउथ रीजन में या वेस्ट रीजन में, for the consumer segment, what is the total sales and profit for the categories, what is the total sales and profit for the subcategories। तो उसके लिए आप साइमल्टेनियसली रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही रीजन सिलेक्ट करोगे तो उसने अभी हमारे डेटा को फिल्टर किस तरह से किया है, उसने फिल्टर इस तरह से किया है कि कंज्यूमर सेगमेंट के लिए सेंट्रल रीजन में कितना टोटल सेल हुआ है, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है फॉर ऑल दी कैटेगरीज, कितना टोटल सेल हुआ है, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है फॉर ऑल दी सब कैटेगरीज। इस तरह से इसने अभी हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी। सो दिस इज द पावर ऑफ द स्लाइसर। उसी तरह से कंज्यूमर सेगमेंट के लिए ही आप सिलेक्ट कर सकते हो ईस्ट रीजन, और ईस्ट रीजन में फॉर कंज्यूमर सेगमेंट यू कैन चेक द टोटल सेल एंड प्रॉफिट, टोटल सेल एंड प्रॉफिट फॉर द कैटेगरी एज वेल एज द सब कैटेगरी। अभी मैं ये कंज्यूमर सेगमेंट को हटा रही हूँ और मैं ले रही हूँ ऑफिस, होम ऑफिस segment, and for home office segment I want to check what is the total sale and profit for the south region. So immediately it will show the total sale and profit for the home office segment and for the south region. So with respect to the selected value from the slicer, it will change the data from the presented data, or whatever the variable we have selected, उसमें से ये क्या कर देगा, डेटा इमीडिएटली चेंज करके दे देगा। अभी मैं इस सिलेक्शन को हटा रही हूँ। सो अगेन आई एम क्लिकिंग एंड नाउ वन अनदर स्लाइसर आई एम टेकिंग। इसके साथ मुझे अभी क्या चेक करना है, भाई शिप मोड का कुछ असर हो रहा है क्या। आप जो कुछ भी सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, जितना भी सेल्स हो रहा है, जितने भी सेल्स पे जितना भी प्रॉफिट आपका बन रहा है, उस प्रॉफिट पे या उस सेल्स पे अपने शिप मोड का कुछ असर हो रहा है क्या। तो वो शिप मोड का असर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, सेल्स जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और स्लाइसर ले सकते हो और उस स्लाइसर में अभी शिप मोड का डेटा ले सकते हो। तो क्या कर लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैं रिमूव कर रही हूँ इसको और इसी में ही सिलेक्ट कर रही हूँ। सो मैं शिप मोड का डेटा ले रही हूँ यहाँ पे। अभी देखिए, अभी ये शिप मोड आ गए।
सो शिप मोड का डेटा कितने क्लासेस में है? फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकंड क्लास है और स्टैंडर्ड क्लास है। ये आपका डेटा है। सो मैं अभी चेक करूंगी फर्स्ट क्लास में ओवरऑल कितना सेल्स जनरेट हो गया है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो आपने देखा ये हमारा ओवरऑल सेल एंड प्रॉफिट है विदाउट एनी सिलेक्शन ऑफ द स्लाइसर। जैसे ही मैं स्लाइसर में शिप मोड सिलेक्ट करूंगी, पर्टिकुलर शिप मोड सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि ये स्टैंडर्ड क्लास मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसने अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। उसी तरह से मैंने सेकंड क्लास को सिलेक्ट कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है। जैसे सेम डे पे मैं सिलेक्ट किया, तो सेम डे पे कितना सेल जनरेट हो गया, कितना प्रॉफिट जनरेट हो गया फॉर ऑल दी कैटेगरीज एंड फॉर ऑल दी सब कैटेगरीज विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेक्शन फ्रॉम द स्लाइसर, इट विल चेंज द वैल्यू। तो इसी तरह से वो वैल्यू चेंज कर रहा है। अभी ये शिप मोड के साथ साथ मैं चेक करना चाहती हूँ कंज्यूमर सेगमेंट का टोटल सेल एंड प्रॉफिट फॉर ऑल दी फॉर द सेंट्रल रीजन। तो मैंने तीन स्लाइसर्स में तीन अलग अलग डेटा सिलेक्ट कर दिया है मैंने। देखिए, मैंने सेगमेंट स्लाइसर में से कंज्यूमर सेगमेंट को सिलेक्ट कर दिया, रीजन स्लाइसर में से सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट कर दिया एंड शिप मोड में से सेम डे को सेम डे शिप मोड, ये जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। जो मैं ये सिलेक्शन कर रही हूँ उसके बेसिस पे उसने अभी बता दिया कि कंज्यूमर सेगमेंट के लिए फॉर द सेंट्रल रीजन अगर सेम डे शिप मोड है तो कितना सेल्स जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है फॉर ऑल दी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। सो इसी तरह से आप ये कंज्यूमर सेगमेंट को हटा के कॉर्पोरेट सेगमेंट को चेक कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेगमेंट को हटा के होम ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हो, सेंट्रल रीजन को हटा के साउथ रीजन को सिलेक्ट कर सकते हो, सेम डे को हटा के सेकंड क्लास को शिप मोड जो मेथड है हमारी उसको सिलेक्ट करके देख सकते हो कि टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर ऑल दी कैटेगरीज एंड फॉर ऑल दी सब कैटेगरीज कैसे चेंज हो रहा है। इसी की तरह हमारे साथ में हमारे हाथ में अभी एक और डेटा है जो है सिटी वाला डेटा। तो सिटी वाले डेटा, पहले तो ये मैं सिलेक्शन हटा रही हूँ, ये है क्लियर सिलेक्शन, रबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये सिलेक्शन हमारा जो कुछ भी हमने स्लाइसर में डेटा सिलेक्ट किया है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, अनसिलेक्ट हो जाएगा, इसको भी क्लिक कर रही हूँ, अनसिलेक्ट हो जाएगा और इसको भी क्लिक कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। एक और मैं स्लाइसर यहाँ पे ले रही हूँ, ये है दूसरा स्लाइसर। अभी इस स्लाइसर में मैं क्या कर रही हूँ, सिटी वाला डेटा ले रही हूँ। तो हमारे हाथ में बहुत सारे सिटीज है, तो सिटीज वाला डेटा ले रही हूँ, या स्टेट वाला डेटा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेट वाला डेटा ले लिया। अभी मैं चेक करूंगी, आपके बॉस ने बताया भाई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सेम डे अगर शिप मोड है तो कितना सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बताओ इमीडिएटली मुझे। सो यू आर एबल टू फाइंड एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम योर लार्ज साइज डेटा विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर्स। तो अभी यहाँ से जैसे कि मैंने फ्लोरिडा स्टेट को सिलेक्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर रही हूँ फ्लोरिडा। अभी ये फ्लोरिडा ने ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कर दिया, लेकिन और एक फिल्टर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। वो कौन सा फिल्टर है, फ्लोरिडा में अगर शिप मोड सेकेंड क्लास है और सेगमेंट है उसका कॉर्पोरेट सेगमेंट, तो कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बताओ, कितना सेल्स जनरेट हो रहा है बताओ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बॉस आपको पूछता है, सो यू आर एबल टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज साइज ऑफ डेटा वेरी क्विकली, इंस्टेंटली, एंड you can present that information with the help of the slicers. So this is the power of slicers। जैसे कि फ्लोरिडा का बताया मैंने, अभी मैं कैलिफोर्निया अगर सिलेक्ट करूं तो कैलिफोर्निया का टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट वो बताएगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्लास की जगह फर्स्ट क्लास ले लूं
तो क्या करेगा वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा इंफॉर्मेशन चेंज करेगा। तो शुरू में हमने क्या किया, कॉलम चार्ट को ले लिया, कॉलम चार्ट में हमने कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वेरिएबल को सेल्स एंड प्रॉफिट को प्रेजेंट कर दिया। फिर सेल्स एंड प्रॉफिट मुझे चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिमेनिंग वेरिएबल फ्रॉम आवर डेटा सेट। अगर क्विकली चाहिए सेगमेंट के लिए सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो गया, रीजन के लिए सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो गया, शिप मोड के लिए सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो गया, स्टेट के लिए शिप सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो गया। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली क्विकली इंस्टेंटली आपको प्रेजेंट करना है, सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द चार्ट्स फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल, आप एक बेसिक चार्ट प्रिपेयर करके उसके बेसिस पे स्लाइसर्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका लार्ज साइज डेटा में से क्विकली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द यूज ऑफ Hmm. This is the use of the slicers in the Power BI. I hope you understood the use of Power BI and the power of the slicers. Sorry, use of slicers in the Power BI and the power of slicers in the Power BI. So, ऐसे ही instant and quick AI based AI related AI integrated features जो है इन पावर बीआई, अगर आपको देखना है वीडियोस, समझना है कैसे डिफरेंट विजुअल ऑप्शंस आपको आप यूज कर सकते हो उसको टू प्रेजेंट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मनीषा मोरे चैनल, यूट्यूब चैनल।